municipality, municipality. We want Justice, we want justice, we want justice. हमारे साथ इंसाफ करो, justice, we want justice. कूड़ा करकट बंद करो. Municipal corporation. We want. We want. We want. Justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. دیوار مطلب 18.5 فٹ امہ تھوٚد تہِ ہسا چھُ کوٗڑ نہ وجہ سۭتۍ چھِ دیوار ویوار سۭتۍ مطلب یہِ سورُے اگر آئی اوپن ہے اوپن کوڑ دیکھیے یپٲرۍ یہِ جنگل پور تپٲرۍ ہاوُن یِم کُلۍ پھٕٹرٲیِتھ نیوز چینل پہ دان زمین تہ یور سورُے دان زمینس کۭژاہ تبٲہی گٔے ایرا جو کمپنی ہے باہر کی ایجنسی ہے تقریباً انہوں نے 3 یا 4 سال کام کیا 5 سال کام کیا اس کے بعد بھی یہ پوری طرف سے فلاپ ہوا ہے یہاں پہ اب ایرا نے یہاں سے بھی شفٹ کیا جو پرسوں یہاں پہ ایک انجینئر آئے تھے باہر کے انہوں نے یہاں پہ پورا ایک سسٹم بنایا یہاں پہ پھر انہیں اپنا جو بات تھی ٹی وی پہ کہی ٹی وی میں اردو میں وہ بات چلی اگر یہاں سے ان کو 1 یا 2 مہینے اگر شفٹ نہیں ہوا یہاں پہ آتش پہاڑ بن جائے گا بلاسٹ ہو جائے گا اگر اس میں شہر سری نگر کے جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 8 کلومیٹر اندر اس میں سبھی لوگ اس میں مر جائیں گے اور دوسرا ہمیں یہ ریکویسٹ جو ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے اس میں مبارک گل صاحب تھا ڈی سی سری نگر صاحب تھا کمشنر صاحب تھے خود کل کمشنر صاحب جو اب نئے آئے ہیں یہاں پہ اس نے کل یہ بات یہاں پہ ایکسیپٹ کی ہمیں لوگوں کے سامنے کہ زیادہ سے زیادہ ہم 2 مہینے یہاں پہ کوڑا ڈال سکتے ہیں 2 مہینے یا 3 مہینے ہم ڈال سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے اور جگہ ڈھونڈنی ہے ہم یہی بات کہہ رہے ہیں خدا را ہماری سنو اگر 4 زونوں میں آپ کو یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا اس کو اس ایگریمنٹ پہ آپ چلو امپلیمنٹ کرو اگر یہ بولتے کہ یہ تمباکو کا کاغذ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کا دماغ کہاں ہے اگر ایک آفیسر چاہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ کسی آدمی کو آرڈر دیتا ہے وہ مرنے دم تک وہ رہتا ہے اس کا آرڈر اس نے یہ آرڈر ہے اس کے پاس ہائی کورٹ بھی اس کو نہیں کر سکتے یہ آرڈر ڈپلیکیٹ ہے یہاں پہ ہمارا ڈی سی صاحب نے اس کو دستخط کیا اس میں تھا یہ ڈویژنل کمشنر صاحب اس میں تھے مبارک گل صاحب کل ہم مبارک گل صاحب کے پاس گئے میں اس سے ملا میں نے بولا خدا رہا ہمیں سچ بتا آپ کعبے میں گئے ہو سچ بتانا کل اس نے یہ بول میرے ساتھ کی کہ جب ایگریمنٹ ہوا میں وہاں موجود تھا میرے دستخط ہے ایگریمنٹ کے سامنے آپ اگر چاہو میں ہائی کورٹ میں یہ نہیں آج تو وہ کہہ رہے ہیں جب ان کی حکومت تھی تب تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تب یہ سچ یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے اس کے اوپر بھی پریشر آیا وہ خاموش بیٹھ گئے یہ حقیقت ہے اصل میں اسی کی ذمہ داری وہی آتا ہے وہ چھپ اس ٹائم وہ چھپ بیٹھ گئے پھر اس نے ریزولوشن پاس کیا کہ ہم اس کو 4 زونوں میں تقسیم کریں گے لیکن چاہے وہ عمر اللہ کی سرکار ہو یا کانگریس کی سرکار ہو PDP کی سرکار ہو یہ پروٹیسٹ آپ نے جو پرسوں سے کر رہے ہیں تو اس کی ریگارڈنگ ہمیں بتائیے کہ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج دن آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ نے جو سنا ہے یہ بالکل درست ہے
हम 33 साल से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि 33 साल पहले 1983 में, ये 1983 के पहले ये वेटलैंड था यहाँ, जहाँ पर हम खड़े थे ना, ये वेटलैंड था। इसमें परिंदे आते थे ऑस्ट्रेलिया से, जैसे अभी हॉकरसर में आते हैं मतलब परिंदे, ये लोग बोल रहे हैं कि फॉरेनर्स आ रहे हैं परिंदे यहाँ, वो भी यहाँ बैठते थे। किस्मती से 1983 में गवर्नर राज, उस टाइम उसने लगाया था एक मतलब फाउंडेशन स्टोन, उसमें सेटेलाइट कॉलोनी इसमें नाम दिया गया। तो अभी गवर्नर हाउस में वो उनके कागजात वो अभी मौजूद है, जहाँ जो लोग मतलब सेक्रेटरी में उन दिनों काम करते थे, उन लोगों ने यहाँ ज़मीन भी खरीदी है। इसके बाहर ये लैंड था, मतलब रेवेन्यू का लैंड था। ये 400 कुछ कनाल थे इसमें, और इस साइड में राइट साइड में हमारे थे घास चराई के थे, चुराने कनाल, वो भी उन्होंने अब हड़प कर लिए हैं। अभी 600 कनाल पर ये मतलब अभी डंपिंग जो है ना ये बन गई है, क्योंकि फिर मिलिटेंसी यहाँ स्टार्ट हो गई है, तो हालात ठीक नहीं रहेंगे। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसमें कब्जा जमा दिया और आहिस्ता आहिस्ता कूड़ा डालता गया है। लेकिन आज के तादाद में ये 400 मीट्रिक टन पर डे कूड़ा यहाँ आता है। हम ये 33 साल में तकरीबन हर मतलब साल या 2 साल के बाद प्रोटेस्ट करते आए हैं कि मेहरबानी करके 2 ही बातें हैं, या तो हमको शिफ्ट कीजिए या इस डंपिंग को बंद कर दीजिए। लेकिन हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। गवर्नमेंट इसमें इतना इन्वेस्ट कर रही है, जो आप देख रहे हैं करोड़ों। ये देखिए पर साल ये जो पेड़ इन्होंने लगाए हैं, 1 करोड़ 47 लाख रुपया इन लोगों ने निकाले हैं। अब देखिए दीवार का मतलब दीवार का क्या हाल है। अगर ये हमको मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग लैंड माफिया है, तो मतलब कम से कम हमको दिखा दीजिए कौन लैंड माफिया है। इनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है। अगर ये 600 कनाल है तो इसमें से कौन घुस गया है जिसने 4 कनाल 10 कनाल या 50 कनाल ज़मीन हड़प कर लिया है। मगर अफसोस की बात है हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब ऊपर मतलब जो ऊपर मतलब गवर्नर साहब है, अभी मतलब ड्यूकॉम है या डिविजनल कमीशन या म्यूनसिपल कमीशन है, उससे हमारे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए, देख लीजिए हमारी जो हर मतलब मुसीबत ये 33 साल से हम झेल रहे हैं। मतलब ये कोई मतलब मामूली एजिटेशन नहीं है, ये मामूली अरसा नहीं है। 33 साल से हम लोग ये कह रहे हैं कि मतलब ये कूड़ा जो है ना ये वबाली जान हो गया, हमको रिश्ता नहीं मिलता है, किसी जगह सांस नहीं ले सकते। अगर वो लोग किसी जगह सांस आराम से ले सकते हैं, हम क्यों नहीं लेंगे? क्या हम मतलब कोई आज़ादी मांगते हैं? हम ये करते हैं। 2007 में फिर हमने मतलब एजिटेशन शुरू किया है, हम सड़कों पर बैठ गए हैं आराम से। हमने मतलब यही उनको बता दिया कि शिफ्ट कीजिए, 2 ही बातें, या तो हमको शिफ्ट कीजिए या डंपिंग शिफ्ट कीजिए। गवर्नमेंट के और आपके दरमियान एक मुआहदा हुआ कि जिसमें आधे जो एम्प्लॉयज़ लग गए यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि हमने इनको कंपनसेट किया है क्योंकि इन्होंने नौकरी भी ली है, आधे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल गलत, क्योंकि उस टाइम तो चल रही थी। क्या वजह है कि आपने ये एजिटेशन में ये स्टॉप की उस वक्त? देखिए ये बात बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट ये तवज्जो दे रहा है मतलब ऊपर वालों को, जो ऊपर गवर्नमेंट है मतलब उनके ऊपर जो बैठे हैं उनको तवज्जो दे रहे हैं कि हमने यहाँ 10 या 20 आदमी मतलब निकाले हैं जो उनको मतलब यहाँ लगाए हैं काम पर। लेकिन किस काम पर? वो कूड़ा दान उठाते हैं। वो मतलब जो शेख उनका सफाई वाला कर्मचारी काम करता है, वो काम वो लोग उनसे लेते हैं। तो ये कोई मतलब ये नौकरी नहीं हो गई। और अगर है भी आप 10 या 20 या 30 आदमी है, तो इसके आसपास मतलब तकरीबन 75,000 लोग रह रहे हैं। तो उनका क्या करेंगे वो लोग? वो उनको मारेंगे क्या? 2007 में हमने उनके साथ गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो मतलब डिवीजन कमिश्नर के सामने है। क्या डिविजनल कमिश्नर कोई हस्ती नहीं है? उसके विटनेस है, कंसर्न MLA है, SP श्रीनगर है, कमिश्नर म्यूनिसिपलिटी है। उस टाइम क्या वजह है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ फिर ग्राउंड लेवल पे जो आपके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था? फिर क्या वजह रही? देखिए 1.5 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने हमको 1.5 साल टाइम मांगा। उस टाइम हमने 1.5 साल दे दिया है। 2008 में अक्टूबर 2008 में टाइम खत्म हो गया था। फिर मतलब इन लोगों ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, जगह नहीं देखी। अफसोस का मुकाम ये है कि जगह इन लोगों को देखनी थी और हम लोगों को साथ ले लिया। 4-5 आदमियों को हमको साथ ले लिए। 2-4-5 जगह उन्होंने हमको भी दिखाए कि हम यहाँ डालेंगे, वहाँ डालेंगे। ये काम तो उन लोगों का था, हमारा काम नहीं था। तो तब से मतलब न तो वो उन्होंने मतलब गौर में रखा, ना उनके जहन में रखा। वो हमको ही दबा रहे हैं। जब भी लाते हैं या कूड़ा तो फोर्स के मतलब फोर्स थ्रू फोर्स लाते हैं। तो मुबारक साहब असेंबली में स्पीक करते तब तो वो कुछ कर सकते थे आपके लिए, क्योंकि उनको खाली पावर्स थे। उनको पावर सियासत करते हैं, उनको पावर्स है, लोगों को ये मारते हैं, बस ऊपर बैठते हैं, लोगों को मार के। उनको हिंदुस्तान खुश होना चाहिए। हिंदुस्तान, यहाँ के आदमी मरे, कैसे मरे,
क्यों मारे, क्या हुआ? हम ये कह सकते हैं कि सियासत हो रही है इस मसले में, लोगों के साथ सियासत कर रहे हैं। देखिए साहब, आप कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं है, आप करण नगर में रहते हैं, आप वहाँ मुर्गा या और कोई चीज़ खाता है, उनकी टांगे यहाँ पहुँच जाती है। हम लोग क्या करें, हम भी इंसान हैं। अगर ये इंसानों को सफाई करते हैं तो हम भी इंसान हैं, या हमको और नाम दीजिए, ये इंसान नहीं है, बस वही ठीक है। अब हमारा एक ही मुतालबा है, या ये डंपिंग साइट बंद होना चाहिए या हमको रिहेबिलिटेट, उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है हम आपको यहाँ से भगा देंगे अगर हमको मतलब दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुआ है, हम आपसे मतलब ये वादा करते हैं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब ये कहता है ये तंबाकू का कागज़ है, ये किसी ने आपसे किया है, आप ये मेहरबानी करके ये आप गौर से देखिए, मतलब इसमें डीसी विटनेस है। मुबारक गुल साहब तो वो नहीं था, मतलब ये स्पीकर नहीं था उन दिनों, उसके पास तो बहुत पावर है क्योंकि वही तो पावर उसको अपने लिए खर्च करते हैं सर, उसका पॉकेट भरना चाहिए, बस वो अपने पॉकेट के लिए पावर्स में है, लोगों के कोई नहीं है, यहाँ कोई सुनता नहीं है। कमिश्नर बशीर अहमद खान साहब से बात की तो उनके तासुरात कुछ इस तरह से थे। देखिए, जो ये लैंडफिल साइट है अचन में, वर्चुअली इट हैज़ बीन एक्वायर्ड, ये इसको जो हमने लिया म्यूनसिपलिटी में, ये 1985 में लिया है। 1985 में पहले गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट लैंड 500 कनाल जो है वो म्यूनसिपलिटी के नाम ट्रांसफ़र की। उसके बाद हमने कोई 350 कनाल के करीब रुकबा खरीदा। इस वक्त हमारी पोजीशन में तकरीबन 900 कनाल ज़मीन है, जिसमें से अभी तक हम कोई 300-350 कनाल ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें पहले किस तरीके से छोड़ा जाता था, वहाँ बस्ती भी साथ में नहीं थी। सैदपुरा आप जान सकते हैं कितनी दूर बस्ती है, वहाँ बस्ती थी। ड्यूरिंग द पीरियड लोगों ने विदाउट परमिशन उस साइट के करीब मकान बनाए, जो कि बनना नहीं चाहिए था। कैसे उनको एलो कर दिया गया ओवर द ईयर्स, और आपको यहाँ के हालात की भी पता है, हालात के सालात से, किन हालात से हम गुजरे। तो लोगों ने एनक्रोचमेंट करके विदाउट परमिशन वहाँ अपने मकान बनाए। कारखाना लगा हुआ था हमारा श्रीनगर, वो आउटस्कर्ट्स उस वक्त माना जाता था। तो उस लैंडफिल साइट को हम साइंटिफिकली आज भी मैनेज अप कर रहे हैं। पहले कैसे किया जाता था, उसके बाद जो ADBP है उन्होंने फंडिंग शुरू की थ्रू एरा, तो वहाँ हमने वो सेल्स बनाने शुरू की। एक सेल हमने बनाई, वो फिल हो गई। दूसरी सेल इस वक्त चल रही है जिसमें हम कूड़ा डाल रहे हैं। तीसरी सेल इस वक्त हमारी बन रही है। इन्हीं में से कुछ लोगों ने एक PIL किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरे हिंदुस्तान में इन चीज़ों को देखा करता है। वेरी कॉम्पिटेंट जुडिशल अरेंजमेंट है वो इसको देख रहे हैं, और पिछले 1-2 साल से वहाँ हमारा केस चल रहा है। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला भी कुछ सुनाया है। उसमें हमने फाइनली जो उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस हाई पावर कमेटी में दिल्ली जो हाउसिंग हमारा मिनिस्ट्री है उसके भी लोग थे, उसमें नेशनल एक्सपर्ट थे, यहाँ के लोग यहाँ के एक्सपर्ट थे, यहाँ की टॉप ब्रास हमारी थी। उन्होंने जब डिसीजन लिया कि इसका एक ही चारा है, वो है वेस्ट टू एनर्जी, यानी इस कूड़े को एनर्जी में तब्दील करना, यानी इससे पावर जनरेट करना। उसके बाद बाज़ाब्ता पिछले साल एक NIT जारी हुआ, ग्लोबल NIT जारी हुआ। उसमें कुछ प्लेयर्स आए, बचते बचते एक प्लेयर ही लहा स्पार्क नाम करके, उन्होंने टेरिफ दे दिया कुछ 8 रुपये 90 पैसे कि आप हमसे पावर खरीदिए। 5-7 मेगावाट की कैपेसिटी है। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में जब उसको एनालाइज किया, उन्होंने कहा ये टेरिफ बहुत हाई है, और हमारे पावर डिपार्टमेंट में एग्री नहीं हुआ। जब एग्री नहीं हुआ तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला ले लिया कि इसको रीटेंडर किया जाए, फिर देखा जाए ताकि टेरिफ तो कम हो जाए। उसके बाद हम उस एजेंसी को देंगे, वो एजेंसी इसको वो प्लांट अपना खड़ा कर देगी। उसके बाद दैट इज़ द ओनली पॉसिबल एंड द प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो बाकी जगहों में भी हो रहा है। ये लैंडफिल साइट या ये जो हमारा इस वक्त अरेंजमेंट है, ये सिर्फ हमारे श्रीनगर का ही मसला नहीं है। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं जगह आप प्लांट्स आ गए हैं, जैसे दिल्ली में कुछ प्लांट चल रहे हैं, या जैसे आंध्रा वालों ने आप शुरू किया है और कई जगहों पर शुरू किया है।
उस तरह हम भी करने जा रहे हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल में पिछले दिन 10 तारीख को 11 तारीख को ये 10 तारीख को लगा था। 10 तारीख में उन्होंने इसको 17 तारीख के लिए रखा। गवर्नमेंट विद द प्रेयर है बिफोर द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल कि हमें रीटेंडर करने की इजाज़त दी जाए। अगर हमें रीटेंडर करने की 17 तारीख को ये लगा है कि अब ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या फैसला देती है, तो वी हैव टू गो बाय दैट डिसीजन। तो अगर उन्होंने हमें इजाज़त दी रीटेंडर करने की, तो इमीडिएटली विद इन 3 मंथ्स आई एश्योर कि ये रीटेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होकर और अगले 1.5 साल के अंदर अंदर ये प्लांट जो है, क्योंकि जो भी प्लेयर वो कहते हैं, जितने से हमारी बात हुई है सब कहते हैं इसमें 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल के लिए हमने शॉर्ट टर्म एक अरेंजमेंट बनाया है। शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट ये है कि सेकंड जो सेल है वो चलेगा, उसके बाद थर्ड हमारा तैयार हो जाएगा। मेरे 2-2.5 साल के लिए कैपेसिटी है अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इन प्लेस है। बाकी जो कुछ वहाँ कूड़ा फैलाया गया था वो भी एक अप्रोच था, एक कंपनी उसमें भी वो उन्होंने कहा था इसका साइंटिफिक डिस्पोजल हो जाएगा डिकम्पोजिशन के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को खदशा हुआ कि ये कूड़ा फैल गया, आता है कि उसमें से उतनी बदबू नहीं आती है। हमने वो अरेंजमेंट बंद कर दिया। उसके लिए भी हमने शॉर्ट टर्म में ये किया, विद इन 2 मंथ्स जितना भी वो कूड़ा नीचे गिरा है वो भी हम सेल में वापस डाल देंगे। सर सवाल ये है कि जो आपने एग्रीमेंट हुआ है 2007 में, 1.5 साल के अंदर हम खाली करेंगे, ये दूसरी जगह का शिफ्ट करेंगे, तो उस वक्त स्पीकर मुबारक गुल साहब थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में आपका ये बाज़ाब्ता दे दूँगा स्टेटमेंट। उस वक्त के एसपी जो लोगों की है और डीसी साहब थे और डिविजनल कमिश्नर के वो भी थे। लोगों का कहना है कि ये फिर जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट नहीं हुआ फिर ग्राउंड लेवल पर। और बदबू की बात सर है तो मैं खुद वहाँ पर गया, कल उस साइड पर था, तो बदबू इतनी है कि मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं रह सकता। मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर रहूँ तो बीमारियों का खर्च है। देखिए, मैं इस सवाल का ऐसे जवाब दूंगा, जो आपने किसी एग्रीमेंट की बात की, मुझे ये लोग कह रहे हैं, मुझे 1 हफ्ता हो गया यहाँ, 1.5 हफ्ता हो गया, मुझे भी ये सुनने में आया। लेकिन जो हमने उस एग्रीमेंट के बारे में सुना वो एग्रीमेंट SMC के साथ नहीं हुआ है। उस वक्त कोई ऑनरेबल मायर साहब थे, उनकी आपस में क्या एग्रीमेंट हुआ दैट इज़ अननोन टू दी पीपल। दूसरा ये कि आप कहेंगे कि कोई भी किसी स्टेज पर कहे कि हम इस लैंडफिल साइट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है कि हम बारामूला की तरफ जाए, बारामूला को अपनी प्रॉब्लम है, हम बांडीपोरा की तरफ जाए वहाँ अपनी प्रॉब्लम है, हम पुलवामा की तरफ जाए वहाँ अपनी प्रॉब्लम है। जब श्रीनगर का डिस्पोजल करना होगा तो श्रीनगर के ही जुरिस्डिक्शन में करना पड़ेगा। यहाँ से क्यों कोई माने हमें बारामूला का, या यहाँ से पुलवामा का, गांधरबल का, बांडीपोरा का क्यों माने कि आप मेरी जगह लेकर ये डंप करो? वहाँ भी लोग रहते हैं। हाँ, यहाँ इमीडिएट अटेंशन हर किसी का है। मसलन डिविजनल कमिश्नर भी हमारे पीछे, पूरी गवर्नमेंट हमारे पीछे, इसको मैनेज साइंटिफिकली करो, हम कर रहे हैं मैनेज साइंटिफिकली, इसमें शक नहीं है। जो अभी आपने कहा कि आप खुद गए थे वहाँ, मैं भी वहाँ 2 दफ़ा गया, मेरे साथ कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग विपुल पाठक जी भी गए थे। उतना कुछ नहीं है जितना आपने देखा, या आप सही भी फरमा रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूँ, अगर घर में भी आप कचरा रखेंगे 2 दिन के लिए तो वहाँ भी थोड़ी सी बू आती है। अब आज क्यों ये बू आ रही है? एक तो वो कूड़ा हुआ है, फैला हुआ है, जिसको ऊपर हुआ है सर, दैट इज द प्रॉब्लम। असल में एक मसला ये है कि जब कूड़ा उसके ऊपर चढ़ गया ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो आपको केमिकल्स डाले थे शायद, तो वो मसला है। देखिए ना, मैं आपको गुजारिश वही करने जा रहा हूँ। पिछले 9 दिनों से ये लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं। पुलिस प्रोटेक्शन में हम यहाँ से गाड़ियाँ ले जाते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन में हम वहाँ वापस आ जाते हैं। इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है कि 4 बजे 5 बजे तक हम कूड़ा डालते हैं, 5 बजे के बाद हम उस पर मिट्टी डालते हैं। पहले हम उस पर वो छिड़काव करते हैं जिससे वो कंट्रोल होती है, उसके बाद हम मिट्टी डालते हैं। जब इन लोगों ने हमें काम ही करने नहीं दिया, हम प्रॉपर उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके वसातत से यकीन दिलाना चाहता हूँ ये लोग पीसफुली रहें। 2 साल 2.5 साल के बाद ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पावर प्लांट तो आ जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी का हुक्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, तो उसको हम बिल्कुल ही उस पर बिल्कुल ही अमल पैरा होना है, उसमें कोई अल्टरनेटिव हमारे पास है ही नहीं।
2 साल 2.5 साल के बाद ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पावर प्लांट तो आ जाएगा। वेस्ट एनर्जी का हुक्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, तो उसको हम बिल्कुल ही उस पर बिल्कुल ही अमल पैरा होना है, उसमें कोई अल्टरनेटिव हमारे पास है ही नहीं। 2.5 साल के लिए हम इनको यकीन दिलाते हैं ये पीसफुल रहें, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दे दें। मैंने कल भी कुछ लोगों से बात की टेलीफोन पर, मैंने कहा 1 हफ्ता आप ले लीजिए, हमें दे दीजिए इसको प्रॉपरली मैनेज करने। 1 हफ्ते के बाद आप 4 लोगों की एक कमेटी हम पर नज़र रखने के लिए रखो, और हर दिन शाम को हमें बताओ आज जनाब ये करना था, वहाँ आपने ये नहीं किया। यू विल फाइंड अस विद देम कि ये करना है कि वहाँ इतना, अगर वहाँ हम से 10 किलो कोई पाउडर इस्तेमाल करते थे, वी विल इंक्रीज इट बाई 20 kg। मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वहाँ 20 ट्रक मिट्टी डालते थे, हम 25 ट्रक कर देंगे। और हम ये आडोर जो है वहाँ पे फुअल स्मेल जो है, इसको इंशाल्लाह हम विद इन ए वीक्स टाइम कंट्रोल करके इनको दे देंगे। और वीक्स टाइम के बाद आप मेरे साथ पूरा प्रेस आ जाइए, उस वक्त आप मुझे कहिए ये आप डिफ़िकल्टी रही है, जो भी डिफ़िकल्टी होगी वी विल एड्रेस दैट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह होना चाहिए। थैंक यू।